قریباً آدھ گھنٹہ چلنے کے بعد خان مطلوبہ مقام پر پہنچ گیا۔ یہ کھیتوں میں گھرا ہوا ایک ٹیوب ویل تھا جس کے مالک نے یہاں ایک کچا سا کمرہ بنا رکھا تھا۔ کماد کی فصل پک چکی تھی اور خان جانتا تھا کہ اس ٹیوب ویل کا مالک اگر اس طرف آیا تو صبح کافی دیر گئے سے آئے گا۔ اس نے لکڑی کا دروازہ کھولا تو دروازوں نے اس کی حرکت پر شدید احتجاج کیا۔ اندر موجود واحد چارپائی پر اس نے بے ہوش پنڈت جی کو پھینکا اور اس کی دوائن یعنی رسی کھولنے لگا۔ اس نے اپنے شکار کی جسمانی ساخت کا اندازہ لگانے کے بعد ہاتھ ذرا سا ہلکا رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ 2-3 گھنٹے تک تو یہ جاگ نہیں سکے گا۔ بے ہوش پنڈت کے پاؤں اور ہاتھ اس نے اس طرح چارپائی سے باندھ دیے تھے کہ اگر وہ چاہے تو خود کو رسیوں سے آزاد کروا سکے، لیکن اس میں خاصا وقت لگ جاتا۔ اسے علم تھا کہ اول تو خوفزدہ پنڈت کے ہوش میں آنے کے بعد حواس ہی باختہ ہو چکے ہوں گے، اور اگر اسے عقل بھی آ گئی تو بہت دیر کے بعد آئے گی۔ رسی سے ایک چھوٹا ٹکڑا اس نے علیحدہ کر لیا تھا۔ باندھنے سے پہلے اس نے رام بھگت کو اس کے لمبے گیروئے چولے سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اس کے گلے میں لٹکتا جنیو اور دوسرے دھاگے بھی اتار کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیے تھے۔ چولا ہاتھ میں پکڑے وہ باہر آ گیا۔ دروازے پر تو اس نے دوبارہ باہر سے کنڈی لگا دی تھی اور رسی کا وہ ٹکڑا جو اس نے کاٹ کر الگ کر لیا تھا اس طرح کنڈی میں پھنسا دیا کہ اندر سے بہت زور لگانے پر بھی دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنا کوٹ اتار دیا اور باقی کپڑوں پر وہی گیروئے رنگ کا لمبا چوغا پہن لیا۔ ماتھے پر تلک تو لگا ہی رہتا تھا۔ گلے میں جنیو اور دھاگے ڈال کر اب وہ رام بھگت بن چکا تھا۔ اس طرح کم از کم اس کے لیے نزدیکی کسی شہر میں داخل ہونا قدرے آسان ہو گیا تھا۔ واپسی کا سفر کچھ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ کوٹ اس نے ایک کھیت میں دبا دیا تھا اور اب بڑی تیزی سے منوہر لال کے سمجھائے ہوئے نقشے کے مطابق سوئے منزل گامزن تھا۔ اس نے اس دوران ریلوے لائن اور 2-3 نالے عبور کر لیے تھے اور اب وہ اندازاً 15-20 میل دور نکل آیا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ آسمان پر صبح کاذب کی سرخی نمایاں ہونے لگی تھی، لیکن دھند بدستور گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک اسے کسی خطرے کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس طرف سے ناکام ہو کر اب بھارتی سیکیورٹی نزدیکی قصبوں اور شہر میں اس کے لیے جال پھیلائے گی، لیکن کھیل اب اس کے لیے نیا نہیں رہا تھا۔ وہ اب اس میں بے نام سا لطف بھی محسوس کرنے لگا تھا۔ اب وہ منوہر لال کے سمجھائے ہوئے نقشے کے مطابق چلا تھا تو اب جس قصبے کے آثار نمودار ہونے لگے وہ یقیناً ماکھن پور کا ہی قصبہ تھا۔ سورج نے بھیگے ہوئے کھیتوں اور گہری دھند کے عقب سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا اور خان کے قدم بڑی تیزی، احتیاط اور اعتماد سے ماکھن پور کے اس بڑے مندر کی طرف اٹھ رہے تھے جس کے لاؤڈ سپیکروں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ جگراتا ختم ہو رہا تھا اور اب اس مندر سے رام سوامی اتسو کا جلوس تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ منوہر لال کے بتائے ہوئے نشانات کی مدد سے اس نے پہچان لیا کہ یہ واقعی ماکھن پور ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ماکھن پور کے ایک بازار میں سردی سے ٹھٹھرتے لوگوں کے ساتھ رام رام کی مالا جپتا بڑے مندر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ سب لوگ اس جلوس میں شرکت کے لیے نزدیکی دیہاتوں سے گیروئے رنگ کے لمبے لمبے چولے پہنے اس طرف آ رہے تھے۔ ماکھن پور کے نزدیکی 3-4 دیہاتوں کے نام ذہن میں دہرا کر اس نے خود کو دل ہی دل میں ایک دیہات سے منسوب کیا اور بڑے اعتماد سے مندر کی طرف چل دیا۔ رام کی پالکی مندر کے باہر دھری تھی اور ارد گرد کے دیہاتوں کے سینکڑوں لوگ وہاں جمع ہو رہے تھے۔ لوگوں کی اس بھیڑ میں وہ بھی غائب ہو گیا۔ جلوس کے شرکا میں مقامی مندر سے پرشاد تقسیم کیا جا رہا تھا۔ خان نے مٹھائی اور چائے کا ایک بڑا مگ پی کر خود کو تازہ دم کیا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ جلوس نے اب آہستہ آہستہ رینگنا شروع کر دیا تھا۔ لوگ اونچی اونچی آواز میں کورس کی شکل میں آرتی گا رہے تھے۔ وہ بھی شرکا کی آواز میں آواز ملا کر بڑے خشوع و خضوع سے رام نام الاپ رہا تھا۔ جلوس نے شہر کا چکر لگانا شروع کر دیا تھا اور اس کے شرکا کی تعداد ہزاروں میں پہنچ چکی تھی۔ جلوس اب شہر کے بڑے دروازے سے گزر رہا تھا۔ جلوس کے ہزاروں شرکا نے اسی رنگ کا، اسی طرز کا لباس پہن رکھا تھا۔ بازار کے دونوں اطراف بنے مکانات اور دکانوں پر سے لوگ جلوس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ ان پتیاں نچھاور کرنے والوں میں سے 2-3 مشتبہ چہرے بھی دکھائی دیے، لیکن اب وہ ان کی دسترس سے باہر ہو چکا تھا۔ جلوس کے شرکا اب پہلے سے تیار لاریوں میں سوار ہو کر امبالہ جا رہے تھے جہاں کسی بڑے مندر میں پوجا کی آخری رسومات ادا کرنی تھی۔ خان بھی ایک ایسی ہی لاری کی چھت پر دوسرے لوگوں کے ساتھ سوار ہو گیا۔ وہ جان بوجھ کر چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ لاریوں میں بری طرح ٹھسے ہوئے تھے، چھت پر بھی سوار تھے اور لاریوں کی پشت سے لگی
ही लोहे की सीढ़ियों से भी चिमटे हुए थे। ये टूटी फूटी लारियां यात्रियों के बोझ से दबी हुई थी और खान को यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे पिचक जाएंगी। शहर के बाहर तक ऐसी लारियों की कतार लगी हुई थी और वो कीड़ी की चाल चलती शहर से बाहर अंबाले को जाने वाली सड़क की तरफ रेंग रही थी। अब वो लोग शहर से बाहर आ चुके थे। मुसलसल जोशो खरोश का मुजाहरा करने और नारे लगाने से खान को अपना हल्क अब दुखता महसूस हो रहा था। उसके जोश में अब खासी कमी आ गई थी। शहर के बाहर 2-3 मील तक यही कैफियत रही। अचानक खान ने अपनी जगह से उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। क्या है बे? एक पंडित के सर पर जूं ही उसने पांव धरा वो जोर से चिल्लाया, क्षमा कीजिए। खान ने ऊपर बैठे बैठे उंगली से पेशाब आने का मखसूस इशारा किया। पंडित ने बड़बड़ाते हुए अपना कंधा एक तरफ हटा लिया और खान बाकी लोगों की गालियां सुनता बिलाखिर रेंगती बस से नीचे उतर आया। उसने पेशाब करने के लिए वाकई खेतों का रुख किया था, लेकिन खेतों में वो रुका या बैठा नहीं बल्कि अंदर ही अंदर चलता रहा। इस दौरान उसने चोले से निजात हासिल कर ली और उसे खेतों ही में दबा दिया। अब वो यहाँ से 1.5 मील दूर एक दूसरी सड़क पर पहुंच चुका था। करीबन आध घंटे बाद वो पटियाला जाने वाली पंजाब रोडवेज की एक बस में सवार हो रहा था। बस ने उसे दोपहर के बाद पटियाला पहुंचा दिया। लारी अड्डे पर पहुंचते ही उसने बाजार का रुख किया और एक विष्णु ढाबे में जा घुसा। दाल फुल्का खाने और चाय पीने के बाद वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगा था। उसके चेहरे पर दूर दूर तक कहीं भी थकावट के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। पटियाला ही के एक होटल में उसने अपने लिए एक कमरा बुक करवाया और जब वो होटल में दाखिल हो रहा था तो खासा मुहज्जब दिखाई दे रहा था। एक ब्रीफकेस उसके हाथ में था और ताजा खरीदे गए रेडीमेड कपड़े उसने पहन रखे थे। उसी होटल से उसने दिल्ली में अपने घर के लिए कॉल बुक करवाई। जब वो अपने कमरे में मौजूद टेलीफोन एक्सटेंशन पर दिल्ली में रमा से बात कर रहा था तो उस होटल के मैनेजर की, जो मकामी CID का टाउट भी था, मुकम्मल तसल्ली हो चुकी थी। रमा ने उसके मुख्तसर मुद्दत के लिए गायब हो जाने पर भी बड़ी बेकरारी का इजहार किया था और खान ने जानबूझकर मिस्टर सुहाय से भी बात की थी और यही बहाना तराशा था कि वो यहाँ पंजाब में सस्ती मार्केट देख कर आया है। उसने मिस्टर सुहाय को बताया था कि उसने पटियाला में कैनवस बनाने वाले बहुत से कारीगरों से, जिन्होंने अपने घरों में पावर लूम्स लगा रखी हैं, बातचीत कर ली है। मिस्टर सुहाय तो उस पर बिछा जा रहा था। रात का खाना खान ने अपने कमरे में ही मंगवाया और जल्दी सो गया। अगले रोज अलसुब उसकी आंख मंदिरों और गुरुद्वारों में से उठने वाले पूजा पाठ के शोर की आवाज से खुली। होटल के मैनेजर ने, जिसे उसने रात ही अपना दोस्त बना लिया था, उसके लिए सुबह 10 बजे जाने वाली गाड़ी के अव्वल दर्जे की सीट बुक करवा रखी थी। उसने खान को बड़ा बिजनेसमैन समझकर दरखास्त की थी कि वो जब भी पटियाला आए उससे जरूर मिला करे। खान ने भी रस्मन उसे जवाबी दावत दी थी। शाम गए जब वो दिल्ली के स्टेशन पर गाड़ी से उतरा तो किशोर और रमा उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उसने रात टेलीफोन पर रमा को इस बात का इम्कान जाहिर किया था कि वो शायद इस ट्रेन से वापस आए और वो यहाँ स्टेशन पर चली आई थी। किशोर ने स्टेशन के बाहर आकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हुए कहा, मैं तो अब जाता हूँ दीदी, तुम संभालो भैया को। रमा ने बज़ाहिर नाराजगी का इजहार किया, जाओ दफा हो जाओ। खान ने उसकी रवानगी पर ठंडी सांस ली। शुक्र है भगवान का, भाई से साथ लाने की जरूरत ही क्या थी। जवाब में रमा हल्का सा कहका लगा कर रह गई। दोनों ने सीधे घर जाने की बजाय एक रेस्तोरां का रुख किया और थोड़ी देर बाद ही दिल्ली के एक मशहूर होटल के फैमिली कैबिन में बैठे हुए दोनों कॉफी की प्यालियां सामने रखे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुन रहे थे। हॉल में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था और खान रमा की आंखों में झांक रहा था, जो उससे साफ साफ कह रही थी कि सितारों की ताबिंदगी और बहारों की रानाई सिर्फ और सिर्फ हमारे ही दम से है। हम ही तो हैं जिन्होंने समंदरों को गहराइयां दी हैं। दोनों के दरमियान मेज मौजूद होने के बावजूद रमा के प्यार की तपिश उसको जलाए जा रही थी। उसका बदन आग की तरह हरारत बख्श और दिल दूध में धोए हुए संगमरमर की तरह उजला और बेदाग था। खान ने कई मर्तबा उसके आबनूसी माथे पर एक पुरस्कार पुरतकद्दुस सी चमक को लहराते देखा और उस लम्हे उसे ये लड़की किसी और ही दुनिया की मखलूक दिखाई पड़ती थी। दूसरी तरफ रमा सोच रही थी कि क्या जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। उसने लड़कपन ही से जो एक ख्वाब देखना शुरू कर दिया था, उसकी ताबीर कितनी जल्दी उसे मिल गई थी। वो सोच रही थी कि इस संसार में कोई और ऐसी खुशनसीब लड़की भी होगी जिसने उसकी तरह ख्वाब देखा और उसकी ताबीर भी फौरन पाली। होटल में लोगों की आमद में मजीद इजाफा होने लगा था और रमा यहाँ बैठी खासी घबराहट महसूस करने लगी थी। उसने अपनी खुली आंखों से खान पर जादू फूंकते हुए कहा, आओ कहीं और चलते हैं। अच्छा, खान ने किसी सहरज़दा मामूल की तरह जवाब दिया और उठ खड़ा हुआ। एक मुअद्दब बैरा दोनों को उठते देखकर बिल ले आया था। बिल रमा ने अदा किया और होटल के बाहर एक टैक्सी की तरफ बढ़ने लगी। खान ने उसे कुछ न पूछा और उसके पीछे पीछे खामोशी से खिंचा चला आया। कनॉट प्लेस। रमा ने दरवाजा भी खान के लिए खुद ही खोला था और उसके बराबर बैठी
रखी हुई टैक्सी ड्राइवर से मुखातिब हुई थी। रास्ते में दोनों में से किसी ने कोई बात न की। खान की ख्वाहिश थी कि शाम ढलने तक वो लोग घर पहुंच जाएं, क्योंकि उसे उसी रात अपने पास मौजूद कागजात को किसी और महफूज हाथों तक पहुंचाने के बारे में हिदायत मौसूल होना थी। कभी कभी तो वो रमा के सामने खुद को बिल्कुल बेबस सा महसूस करने लगता। आज भी नीली साड़ी में मलबूस इस आर्टिस्ट लड़की ने उसे मगलूब करके रख दिया था। ये उसका रोबे हुस्न था कि खान बहुत कुछ चाहने के बावजूद उसे कुछ न कह सका। दोनों जमुना के किनारे किनारे चलते बहुत दूर तक आ गए थे। इस दौरान रमा उससे बातें करती रही, उसे अपने बचपन, स्कूल, कॉलेज की बातें सुनाती रही और वो हूं हाँ करता रहा। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ दिए और दरिया किनारे बने उस मखसूस पत्थर पर खड़े हो गए जहां रमा अक्सर उसे लाया करती थी। दोनों एक दूसरे में गुम दूर मगरबी उफक में डूबते सूरज का नजारा कर रहे थे। डूब जाने से पहले शफक की सुर्खी से उसके सारे दिन का बुढ़ापा पाशुगुफ्ता और जवान लग रहा था और अपनी मौत से बगलगीर होकर उसका सर जमुना के पानियों की गहराइयों में ढलकता जा रहा था। सूरज की रोशनियों की मौत का ये मंजर दरिया की सतह पर जिंदगी की बड़ी खूबसूरत और प्यारी रंग बिरंगी और मुतहर्रक शक्लें बना रहा था। शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर उसने रमा का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर दबा दिया। चलिए, रमा ने किसी पेश आमदा तूफान की शिद्दत को महसूस करते हुए वहां से हट जाना ही मुनासिब समझा। चलो, दोनों शाम ढले घर पहुंचे तो घर के सभी लोग उनके मुंतजिर थे। शायद किशोर ने घर वालों को उनकी आमद से बाखबर कर दिया था। रमा ने किसी के पूछने से पहले ही देर होने का जवाब पेश कर दिया। बोली, एक जरूरी काम याद आ गया था, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर सुहाय ने खान को बताया था कि बलाकी राम को उन्होंने अगले हफ्ते उसकी बीवी बच्चों समेत दावत पर बुलाया है। खान ने हंसते हुए कहा, शुक्र है भगवान का आप भी बिजनेसमैन बनने लगे। खाना सब ने इकट्ठे ही खाया था। फिर वो सब टीवी के सामने आकर हस्बे साबिक बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही मिस्टर अरुण कुमार के लिए फोन आ गया। अरे क्या मुसीबत है भाई। फोन सुनकर वो बड़बड़ाता हुआ उसी कमरे में आ गया। मिस्टर सुहाय ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, होना क्या था, रात 10 बजे की गाड़ी से एक दोस्त आ रहा है। मिसेस सुहाय ने समझाया, बेटा मेहमान तो भगवान की दया है। किशोर ने कहा, जी अगर दिन में आए तो, इतनी रात गए नहीं। किशोर की बात पर सब हंस दिए। उसने एहतियातन अभी तक अपने कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे। ये फोन मकामी दोस्तों की तरफ से था, जिसमें उसे बताया गया था कि उसने अपने पास मौजूद कागजात किसको और कहां मुंतकिल करने हैं। खान ने किशोर से दरखास्त की, यार जरा मोटरसाइकिल की चाबी तो देना। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट की तरफ उड़ा जा रहा था। इस मर्तबा खुसूसी एहतियात बरती गई थी और उसे सिर्फ आध घंटे का वक्त दिया गया था। मतलूबा वक्त तक वो बहरहाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। दिल्ली के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुख्तलिफ एयरलाइंस के जहाज चढ़ और उतर रहे थे और वो मुसाफिरों के लाउंज के बिल्कुल सामने बने टेलीफोन बूथ के नजदीक आकर खड़ा हो गया। एयरपोर्ट की घड़ी ने जब ठीक 9:30 बजाए तो उसने टेलीफोन बूथ के गिर्द इस तरह 2-3 चक्कर काटे कि अगर कोई उस तरफ देख रहा हो तो वो उसकी हरकत का अच्छी तरह जायजा ले सके। उसके बाद बूथ के नजदीक खड़े होकर उसने अपने हाथ अंगड़ाई लेने के अंदाज में फजा में बुलंद किए और वहां से चलता हुआ लंबी राहदारी के एक कोने में बने टी स्टॉल पर आ गया, जहां मुसाफिरों और उनके अजीजों के अलावा मुख्तलिफ एयरलाइंस के मुलाजिमीन भी सर्दी में चाय और कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। अभी उसे वहां रुके बमुश्किल 2 मिनट ही गुजरे थे जब उसने टेलीफोन बूथ के अकब से एक मखसूस एयरलाइन की वर्दी में मलबूस स्टुअर्ट को उस तरफ आते देखा। उसका दिल बड़ी जोर से चंद लम्हों के लिए धड़का, फिर नॉर्मल हो गया। खान ने टी स्टॉल वाले को मुखातिब किया, एक चाय। नौवारिद अब उसके साथ खड़ा हो गया था। बोला, एक नहीं 2। माफ कीजिए, उसने खान को मुखातिब किया, सर्दी आज कुछ ज्यादा ही हो गई है। खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसम का क्या एतबार। इस दौरान उसने नौवारिद की टाई में लगी एक मखसूस पिन भी देख ली थी। दोनों चाय की चुस्कियां लेते हुए मौसम पर गुफ्तगू करते रहे। खान ने चाहा कि बिल अदा कर दे, लेकिन नौवारिद, जिसने अपना नाम अशोक बताया था, उसे रोक दिया और अपनी बैक पॉकेट से बटवा निकाल कर उसमें से पैसे निकालने लगा। चाय वाले को पैसे देते हुए उसने बटवा खान के सामने खोला था और उसमें मौजूद पाकिस्तानी करेंसी नोट खास तौर से उसे दिखा दिए। ये आखिरी कोड था जो उसकी तरफ से खान के लिए मुंतकिल हुआ। खान ने कहा, आइए चलें, और उसके आगे आगे चल दिया। उस तरफ अशोक ने उसकी रहनुमाई एक कदरे वीरान गोशे की तरफ की। दोनों हवाई अड्डे के टॉयलेट रूम की तरफ जा रहे थे। इस जगह दोनों के अलावा और कोई मुसाफिर नहीं था। दोनों की आंखें दाखिले के दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। खान ने बड़ी होशियारी से तहशुदा कागजों का लिफाफा निकाल कर उसे थमा दिया और अशोक ने उससे भी ज्यादा होशियारी का मुजाहिरा करते हुए वो लिफाफा अपने जेरे जामा में महफूज कर लिया। आप चलें, थोड़ी देर बाद मेरी फ्लाइट भी जाने वाली है, मुझे फौरन जहाज ज्वाइन करना है। उसने मुस्कुराते हुए पतलून के बटन बंद करते हुए कहा, शुक्रिया, खुदा हाफिज। उसके साथी ने कहा, खुदा हाफिज, और खान बाहर निकल आया।
खान थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसकी नजरें अशोक के चलते हुए कदमों पर जमी थीं कि उसे एक चाप सुनाई दी। वो ठिठका, संभला और मुड़कर देखने लगा। वहां कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। अलबत्ता एक आवाज आ रही थी। अब कितना अजीब लगता है ये सब कुछ। कभी कभी तो अपना वतन अजीज, घर बार, माँ बाप, बहन भाई इतने याद आते हैं कि रगें टूटने लगती हैं, लेकिन एक ही सोच मुतमईन कर देती है कि हम यहाँ उन्हीं के लिए तो हैं, उन्हीं की खुशियों के लिए। वो बोलते बोलते खामोश हो गया। फिर उसने खुद से सवाल किया, किस शहर के रहने वाले हैं? मैं? सारे शहर ही तो मेरे शहर हैं। अब तो यूं लगता है जैसे मेरा वजूद पाकिस्तान के सारे शहरों की मिट्टी का मुरक्कब है, और अगर अल्लाह ने चाहा तो मुमकिन है अपने अपने मिशन की तकमील के बाद हम सुरखरू होकर अपने वतन में आएं, अपने पाकिस्तान में आएं और एक दूसरे से दोबारा मिल सकें। वो दिल ही दिल में जाने खुद से क्या कुछ कहता रहा और मोटरसाइकिल घर का रास्ता बड़ी तेज रफ्तारी से काटती रही। घर पहुंचने के लिए उसने सीधा रास्ता इख्तियार नहीं किया था, बल्कि रुक रुक कर मुख्तलिफ सड़कों से घूमता हुआ रात 11 बजे के बाद घर पहुंचा था। पिछले 48 घंटे से जो कागजात उसके जिस्म का हिस्सा बने हुए थे, उनकी खुद से महफूज अलहदगी और फिर महफूज ठिकाने तक पहुंच जाने के बाद वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। रात देर गए तक हस्बे मामूल वो रमा से बातें करता रहा। कभी कभी उसे बड़ी उलझन सी होने लगती थी। रमा हमेशा एक सी बातें करती थी, लेकिन दोनों घंटों बातें करने के बाद भी एक बेनाम सी तिश्नगी महसूस करते थे। सुबह देर तक वो सोता रहा। सब लोग अपने काम काज से जा चुके थे। बूढ़ा सुहाय कुर्सी पर धूप में टांगे फैलाए अखबार का मुताला कर रहा था। उसने कमरे से बाहर सुहाय और मिसेस सुहाय पर नजर पड़ते ही पाए लागू का नारा बुलंद किया और गुस्ल खाने में जा घुसा। माताजी ने उसके लिए ताज़ा नाश्ता तैयार किया था, क्योंकि वो अपने धर्म पुत्र की इस आदत का अंदाजा लगा चुकी थी कि वो कभी बासी चीजें नहीं खाता। नाश्ते से वो अभी फारिग ही हुआ था कि सुशील अपने बच्चों के साथ आ गई। सुशील के बच्चे अब उससे बहुत बेतकल्लुफ हो गए थे। उसे देखते ही दोनों अंकल अंकल पुकारते खान की तरफ लपके और उसकी बाहें बेख्तियार फैलती चली गईं। फिर दोनों को उसने अपने फैले हुए बाजुओं में समेट लिया। नाश्ते से फारिग होते ही खान ने आदत के मुताबिक अखबार उठाया और उस पर सरसरी नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। पहले ही सफ़े के एक कोने में लगी खबर ने उसे चौंका दिया। ये खबर दिल्ली और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी जासूसों के कारनामों के मुतालिक थी। अखबार ने अपने एक खुफिया जरिए के हवाले से दावा किया था कि 2 रोज पहले पाकिस्तानी जासूसों ने अंबाला के हवाई अड्डे से कुछ इंतहाई अहम दस्तावेजात उड़ा ली हैं। गो कि इस खबर की तस्दीक सरकारी जराए से नहीं हुई थी, मगर अखबार इस बात पर बज़िद था। इसी अखबार ने यह भी लिखा था कि इससे पहले भी जासूसों का यही गिरोह दिल्ली से भी बहुत सी अहम दस्तावेजात उड़ाकर पाकिस्तान पहुंचा चुका है और भारतीय इंटेलिजेंस को इन जासूसों ने बौखला कर रख दिया है। जैसे ही खान ने अखबार लापरवाही से एक तरफ फेंका, सुहाय ने उसे मुखातिब किया, देखी पाकिस्तानी जासूसों की खबर। खान ने मुंह बिगाड़ कर दिल्ली के करखनदारी लहजे में कहा, बेपर की उड़ाते हैं ये अखबार वाले। सभी लोग कहकहा लगाकर हंस पड़े। सुहाय ने मजीद तंज किया, ये साले ट्रेनिंग दे रहे हैं अपनी छावनियों में मुक्ति बाहिनी को। बरखुरदार मैंने आधी जिंदगी मुसलमान पुलिस अफसरों में गुजारी है। एक बात याद रखना कि हम तो सोचते ही रह जाएंगे। 65 में भी यही हुआ था और 47 में भी उधर कश्मीर में यही तो हुआ था। ये प्लानिंग ही करते रह जाते हैं। सुहाय ने अच्छा खासा तबसरा कर दिया। खान ने महसूस किया था कि जब से वो छावनियों में तरबियत लेते बंगाली गद्दारों को देख कर आया है, तब से इन मामलात में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगा था। वरना तो पहले कभी सुहाय को अखबार गौर से पढ़ते ही नहीं देखा था। इसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती थी कि अब उसे जिंदगी में पहली मर्तबा कुछ माशी सुकून मैसर आया था और उसकी आदत में भी बड़े नामहसूस तरीके से एक तब्दीली सी आने लगी थी। जाने भी दीजिए बाबूजी, सुशील ने बाप को टोका। हफ्ते में एक आध दफा आना होता है और आप पर न जाने आजकल ये सियासत क्यों सवार होने लगी है। कोई और बात कीजिए ना। अरे बाबा, इंसान हूँ मैं भी, मुझ पर भी तो सर्द गर्म का असर होता है। अच्छा खैर जाने दो। फिर वो खान से मुखातिब हुआ, कल आ रहा है वो तुम्हारा भला की राम अपने परिवार को लेकर। खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी खुशी की बात है, मुस्तकबिल में 2-3 और ऑर्डर्स मिल जाएंगे। मिसेस सुहाय ने पूछा, एक तो तुम दोनों पर न जाने भला की ही क्यों सवार रहता है, कौन है ये मुआ? खान बोला, अरे माता जी आप देखोगी तो खुश हो जाओगी। देर गए तक वो बातें करते रहे। फिर खान सुशील के दोनों बच्चों को शॉपिंग करवाने अपने साथ बाजार में ले गया। उसकी वापसी दोपहर के बाद हुई। तब तक रमा भी कॉलेज से वापस आ चुकी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।